Hey guys, this is Aditya Raj Gupta, and in this video I'll be creating grid and creating gaps in between them. So we will be learning about creating gaps in grid system, as we have learned about grid basics and all in previous video. So in this video we will start with some grid techniques. As of now, I have made awesome videos related to web development field. I have created my HTML playlist, so you can have access to that, as I will provide the link in the description box, so you can go there and have access to that. So if you want to learn HTML, then you can bookmark this by clicking here, and you can save this playlist for your future reference, and this playlist will be yours. And if you want to access the CSS full course playlist, then you can do the same for this, as I have made amazing videos on CSS as well, as we have covered Flexbox with CSS grid and all. After that I will start with JavaScript, and before that I will be coming up with a complete responsive website using HTML and CSS, as we have learned everything in that using Flexbox and all. And I have made awesome gym website also, so you can also have access to that, as I will provide the link in the description box. Front-end developer skills, you will see this video also. And if you want to have a job related to this field, then you can watch this video. And I have made a gym website, so this is the gym website as HTML plus. This is awesome gym website, which is complete website. And if you're new to this channel, then subscribe my channel and hit that like button, so I will be getting motivation from your side. So let's start with writing the markup. Markup means HTML. So let me first write the heading in this section. So the heading will be, I will write in the commented part. Heading will be creating. As of now I have created the project name as creating rows, so the heading will be same, creating rows and gaps in. So you will learn this thing in this video, है ना. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज यूजुअल की जो हम हमेशा करते हैं कि मतलब एक यहाँ पे हम डब्बा बनाएंगे, डब्बे की क्लास हम कंटेनर दे देते हैं. तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा डब्बे की क्लास हम कंटेनर दे. तो यहाँ पे क्लास, और इसकी क्लास में यहाँ पे इस बार ग्रिड देता हूँ. क्योंकि हम ग्रिड पढ़ रहे हैं, तो सिंपली हम कुछ भी दे सकते हैं यार. इट्स नॉट मैंडेटरी टू गिव एनी स्पेशल थिंग्स. सो अब यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मैं कुछ बहुत सारे डब्बे और बनाना चाहूँगा ग्रिड समझाने के लिए, क्योंकि ग्रिड सिस्टम वर्क ही इन पे करता है ना यार. तो डिव, इसको भी डिव ही लेते हैं, उसकी क्लास में दे देता हूँ. डिव की क्लास यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा, तो बॉक्सेस ही दे देता हूँ सिमिलर, और डिव को क्लोज कर देते हैं सिमिलरली. और इसी डिव को मैं कुछ नहीं यहाँ पे कुछ आइटम्स भी प्रोवाइड करता हूँ मैं. आइटम मीन्स आइटम 1, हम यहाँ पे बॉक्स 1 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं 10 के लगभग यहाँ पे आइटम कर लेता हूँ, और इनको नंबरिंग में एज यूजुअल कॉन्टिन्यूसली मैं किसको करता रहूँगा. 5 6 7 8. आई होप कि मतलब आप भी कर रहे होगे मेरे साथ, बिकॉज आप कोडिंग जब ही सीख पाएंगे जब आप बिल्कुल मेरे साथ कर रहे हैं काम. नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि मैं अगर बाद में करूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, और आपको समझ भी नहीं आने वाला. साथ साथ करते हुए ये होता है कि प्रैक्टिस तो हो ही जाती है, और हम चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को उसी समय समझ लेते हैं जो हमें डाउट आता है. अब यहाँ पे अगर मैं आउटपुट सेक्शन में देखूँ अगर, तो आउटपुट सेक्शन में मेरी 10 के 10 डब्बे आराम से आ चुके हैं, जो हमारे आइटम 1 आइटम 2 टू आइटम 10 हैं. तो अब मैं यहाँ पे सीधा स्टाइलिंग करता हूँ. इन्हें स्टाइलिंग के लिए मैं सीधा ग्रिड को उठाता हूँ, जिसको मैंने क्लास दी थी, क्या ग्रिड ही दी थी यहाँ पे. तो और डिस्प्ले ग्रिड सिस्टम के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, हमने बेसिक्स में पढ़ा था. अगर आपने उसको एक्सेस नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर लीजिए उस वीडियो को. वो बेसिक वीडियो ग्रिड के लिए. तो ग्रिड के लिए डिस्प्ले हम क्या करते हैं, ग्रिड के लिए डिस्प्ले ग्रिड. एंड देन हमने और क्या क्लास दिया, हमने बॉक्स क्लास दिया है. तो बॉक्स में जाते हैं, बॉक्स में जाते हैं, और इसको हम पहले तो बैकग्राउंड प्रोवाइड करा देते हैं. बैकग्राउंड यहाँ पे होगा, बैकग्राउंड रेड कर देते हैं, और इसको हम लाइट भी कर सकते हैं. यहाँ पे जाके आपको सब पता ही है, कलर पिकर में जाके. ये थोड़ा बहुत डार्क लग रहा है और आंखों को चुभता भी है इतना डार्क रेड, तो इसको हम लाइट में ले जाते हैं बिल्कुल, है ना. और ये हो गया है, और इसके बाद मैं इसमें बॉर्डर भी दूंगा. तो इसका बॉर्डर रहने वाला है 2 पिक्सल्स, एनी पिक्सल्स यू कैन राइट, 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक. ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक. आपका इसका हैश कोड तो पता ही होगा, #000. तो ये आ चुके हैं हमारे, और मैंने इसको ग्रिड में अलाइन करा है. और अगर मुझे मतलब इसको रो वाइज अलाइन, मतलब कॉलम वाइज अलाइन करना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स देना पड़ेगा. और रो वाइज अलाइन करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड टेम्पलेट रोज देना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज दूंगा, ग्रिड टेम्पलेट रोज, जो कि हमारा पहले तो मैं FR वाला मैंने पढ़ाया था आपको, FR यूनिट है, फिर 1 FR, और फिर क्या होगा, मैं 4 FR दे देता हूँ यहाँ पे. और फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज आया है.
तो ये चेंज इसलिए आया कि मतलब यहाँ पे चेंज 3 डब्बों में ही आया हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाले में मतलब एज यूजुअल 4 की तरह चेंज इसलिए दिख रहा है हमें क्योंकि हमने उसमें 1 EFR दिया और एज यूजुअल डिफ़ॉल्ट वो 1 FR ही ले रहे हैं सारे। तो इसलिए अगर मैं वहाँ पे वहीं पे फर्स्ट में अगर 2 FR कर दूँ या फिर सेकंड में 3 FR कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे 5 FR करके दिखाता हूँ आपको, तो फर्स्ट वाला हमारा 5 FR की तक की मतलब वो ले रहा है, विड्थ ले रहा है, तो हाइट ले रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा सेकंड वाला और थर्ड तक की हमने कोडिंग लिखी है, मतलब 1 2 3 के लिए हमने लिखा है 5 1 और 4 FR, तो दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग। और अगर हम और के लिए लिख दें, मतलब हमारे पास 10 डब्बे हैं ना, तो उनके लिए भी लिख दे तो वो भी आसानी से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में, ग्रिड टेम्पलेट रोज में अलाइन हो जाएंगे। और हम यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था ये, फिर मैं बता देता हूँ आपको, ग्रिड ऑटो रोज भी होते हैं हमारे पास। और अगर मैं इसको 3 FR प्रोवाइड कर दूँ तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली मतलब सब कुछ खुद ही कर देगा। कैसे करेगा ये? और 1 मिनट, उसको मैं एज यूजुअल 1 1 करके रखता हूँ सबको 1, ठीक है। इसको 1 1 और थर्ड वाले को क्या, हाँ थर्ड वाले को चेंज रखते हैं। और बाकी ग्रिड ऑटो रोज में क्या होगा कि हमने रो वाइल इसको वो करा है, क्या कहते हैं, ग्रिड दिया है, तो मतलब सब में 3 FR का हमारे पास ग्रिड आ जाएगा। तो आपने देखा कि सब में हमारे पास सेम आ गया। और हमारे पास में 3 में ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमने इसको स्पेशली अलग से हमने उसको 4 दे रखा है, इसलिए ऐसा है। अगर हम ये देने के बाद भी, मतलब हमने जैसे ग्रिड ऑटो रोज दिया है और उसके देने के बाद भी यहाँ पे मैं जो 4th पोजीशन में मेरी रो है ना, 4th पोजीशन में मेरी जो रो है उसको मैं अगर 10 FR दे दूँ तो वो तब भी करेगा। वो कौन सा करेगा? हमारे ग्रिड टेम्पलेट रोज वाला पहले लेगा। तो आपने देखा कि हमारा ये ऐसे काम। अब यहाँ पे हमने ग्रिड टेम्पलेट रो देख लिया इस वाले में, और इस वाले में ग्रिड टेम्पलेट कॉलम भी देखते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। और यहाँ पे मैं इसको 1 FR कर देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। और यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, एनीथिंग, तो 1 F और 2, तो ये बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। पहले वाला क्या होगा, 1 FR अपनी पूरी इस वाले विड्थ के हिसाब से चलेगा ना ये, तो पहले 1, फिर उसके 1 का जितना है उसमें डबल, फिर उसी का 4 गुना ये इधर भी ले रहा है। तो ये ऐसे बिल्कुल काम कर रहा है। और इसमें भी हम दे सकते हैं ग्रिड ऑटो कॉलम्स। अगर मैं यहाँ पे सब में 2 रैम दे दूँ, 2 रैम नहीं सॉरी 2 FR का दे दूँ यहाँ पे ग्रिड ऑटो कॉलम्स में, तो ये सब 2 FR के हो जाएंगे। पर सब नहीं हुआ यहाँ पे, सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में 1 2 और 4 FR दे रखा है ना, इसलिए सब नहीं हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। हमने ग्रिड गैप के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में मैं ये सब नहीं बताने वाला था, बट फिर भी बताना ज़रूरी है। तो ग्रिड गैप अगर मैं यहाँ पर 2 रैम की दूँ तो यहाँ सबके बीच में गैप आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रिड ग्रैप हो गया, अच्छा, ग्रिड गैप, तो सबके बीच में जो ग्रिड में जो गैप है ना वो 2 रैम का आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे काम कर रहा है ये हमारा मार्जिन दे रहा है एक तरीके के, बट उनके बीच में मार्जिन दे रहा है। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से हम एक चीज़ और कर सकते हैं, रिपीट दे सकते हैं। अगर मैं इस वाले पार्ट को हटाता हूँ यहाँ से, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और इस वाले को मैं यहाँ इस वाले को भी हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम दे देते हैं रिपीट वाला, रिपीट एमिट में जो आ चुका है, और रिपीट 4 यहाँ पर आ जाएगा 2 FR। मतलब हम 4 पे रिपीट कर रहे हैं और उसको हमने जो मतलब अलाइन करा है वो 2 FR में कर रहा है। तो अब देखते हैं कैसे काम करता है। ग्रिड गैप का तो 2 रैम ही ठीक है, और बाकी को मैं एज यूजुअल ही रखता हूँ। तो हमने कॉलम में दिया है तो रो वाले में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल 4 पे अलाइन हो चुके हैं और वो 2 FR हो चुके हैं। तो आपने देखा कि हमने मतलब ग्रिड्स के बीच में जो हमारा गैप है विदाउट मार्जिन हमने कैसे उसको यूज़ करा। तो यार रेफरेंस के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, और उसको आप एक्सेस करिए। टेलीग्राम चैनल को वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रही वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। और वहाँ पे कोई भी क्वेरी है ना, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ की क्वेरी है। और मैं ये बता दूँ कि इस वीडियो में हमने इस वीडियो में हमने देखा कि हम ग्रिड में कैसे स्पेसिंग ला सकते हैं मार्जिन के बिना यूज़ करके। मार्जिन में क्या करते थे हम, मार्जिन चारों साइड की देते थे, फिर हमें उस साइड भी मार्जिन आ जाती। बट कुछ केसेस में होता है कि हमें मार्जिन ऊपर या साइड में नहीं लानी, जो हमारे जो डब्बे हैं ना उनके बीच में ही मार्जिन थे। तो ग्रिड सिस्टम यूज़ करके हम उसको ग्रिड गैप दे सकते हैं, तो आसानी से हो जाता है। अब अलग अलग ग्रिड गैप कैसे देते हैं, मान लीजिए हमें जो मतलब बीच का जो ग्रिड गैप है वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज,
वो हमें ज़्यादा देना है, और जो डब्बों के रो वाइज जो ग्रेड गैप है वो हमें कम दे रहे हैं। तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।